Now, the next topic in the category is absolute. So we have already studied about the continuity, uniform continuity. Continuity may be at a point over an interval. Uniform continuity is always defined over an interval, right? And when a function is continuous over an interval, then we can say that it is continuous, it is uniformly continuous. So continuity एक पॉइंट पे हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म continuity जो है वो एक पूरे इंटरवल के ऊपर डिफाइन होती है. So now the next in the category is absolute continuity. So what is absolute continuity? A real valued function f defined on the closed interval a to b is said to be absolutely continuous on the closed interval a to b if, जैसे वहां continuity की definition epsilon delta definition थी, यहाँ भी एक epsilon delta definition. फर्क क्या था, वहां पे सिर्फ एक वैल्यू एट ए टाइम लेते थे, उनको सब्ट्रैक्ट करते थे, उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन करते थे, एज जैसे जैसे x और a का जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा होता है. ठीक है जी. सो सिंपल जब कॉन्टिन्यूटी की बात होती थी तो आप देखते थे f of x minus f of a, it's small, it is less than epsilon whenever x minus a mod is less than delta. लेकिन यहाँ पे क्या किया, एक फाइनाइट कलेक्शन ली पहले ओपन इंटरवल्स की, xi dash of pairwise disjoint closed intervals of closed interval a to b. अब यहाँ पे सपोज करो, अब xi कितने हैं, I running from 1 to 1, मैं पॉइंट मार्क करती हूँ x1 dash. ठीक है, यहाँ ले लिया x2 dash, so not to xn, ये सारे इंटरवल्स इसके अंदर. और आपने देखा मैंने नंबर लाइन पे जिस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं, ये सारे इंटरवल्स क्या हैं, डिसजॉइंट. These are disjoint intervals in the closed interval a to b. और जब हम उनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंथ निकालेंगे, और जब आप इसकी लेंथ निकालेंगे, पहली लेंथ क्या आएगी, x1 डैश माइनस x1. ठीक है जी, प्लस दूसरी क्या आएगी, x2 डैश माइनस x2. चलता जाएगा xn माइनस xn डैश माइनस xn एट स्मॉल. ये जो सम आया, सबकी लेंथ, जितने भी इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ निकाल के वो एक बड़ा छोटा नंबर हमने लिया डेल्टा. इट इम्प्लाइज ये जो इंटरवल्स हैं ये बहुत बड़े इंटरवल नहीं है, दे इटसेल्फ आर वेरी स्मॉल इंटरवल्स बट दे आर डिसजॉइंट इंटरवल्स. सो अगर इनका सम ऑफ लेंथ ऑफ द इंटरवल्स, आप कैसे लिखेंगे, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द इंटरवल is less than delta. It implies the sum of the functional values, sum of the difference of the function, sum of the absolute difference of the functional values, sum of the absolute difference of the functional values is less than epsilon. is less than epsilon. कि जैसे जैसे इन इंटरवल्स के लेंथ का सम छोटा होता जाएगा, वैसे ही इनकी फंक्शनल वैल्यूज के एब्सोल्यूट डिफरेंस का सम जो है वो छोटा होता जाएगा. सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. So now we will come to the remark. A remark in itself is a theorem. Every absolutely continuous function is uniformly continuous, but converse need not be true. So वो कह रहे हैं, अब हमने कितने पार्टीशंस लिए, हमने लिए n पार्टीशंस, 1 से लेके हमने जो वैल्यूज लिए हैं उसको भी कितने इंटरवल्स, हमने n इंटरवल्स. So what they are saying, वो कह रहे हैं एक ही इंटरवल लो and is equal to 1, तो
उसके लिए भी तो रिजल्ट होल्ड करेगा ही, तो समेशन हट जाएगा। समेशन क्यों लगाया? क्योंकि n इंटरवल्स हैं, n इंटरवल्स हैं तो उनकी उतनी फंक्शनल वैल्यूज हैं, तो n को 1 ले लिया, यानी एक इंटरवल के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है। सो दिस इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। And as far as the converse of the theorem is there, so we have some Cantor's function which is uniformly continuous, but it is not absolutely continuous. Now here we will start discussing the properties of theorem number 1 say. So you can also write this is a property number 1. Every absolutely continuous function is uniformly continuous. Now this is a property number 2. So you can write over here the properties of, आप इसके ऊपर heading दे सकते हैं, properties of absolute function, absolute continuity. So if f is absolutely continuous, then f is a function of bounded variation. कल भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के बारे में डिस्कशन हुई थी, राइट? सो फंक्शन एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस दिया है, प्रूफ क्या करना है? प्रॉपर्टी नंबर 2, every absolutely continuous function is a function of bounded variation. गिवन क्या है? गिवन ये है, ये मैं किसकी डेफिनेशन लगा रही हूँ? एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी। व्हेनेवर दिस इज दैट टू प्रूव बाउंडेड फंक्शन ऑफ बाउंडेड, वो उसके फॉर्मूला क्या होता है? यही सेम ही होता है बेटा, यही मैं मान लो इंटरवल ले लो, तो ये आपने प्रूव करना है दिस इज लेस देन डेल्टा। यहाँ आप लिखते हैं टोटल वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ द फंक्शन एफ इज लेस देन इनफिनिटी। So now, since f is absolutely continuous, so we will apply the epsilon delta definition. So you will choose epsilon is equal to 1, then there is a delta, so you will put the formula of absolute continuity, right? अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना? व्हाट वी वांट टू प्रूव द फंक्शन इज इट इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये देखो मैंने आपको पहले बताया कि टोटल वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ द फंक्शन एफ लेस देन इंफिनिटी आ जाती है, इट मींस अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब सबसे पहले हमने एक नेचुरल नंबर चूज किया, दैट इज ग्रेटर देन b माइनस ए अपॉन डेल्टा। सो डेल्टा आ गया b माइनस ए से बड़ा। b माइनस ए क्या है? लेंथ ऑफ द इंटरवल, राइट? t एक पार्टीशन ली हमने, t इज द पार्टीशन, क्योंकि देखो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन प्रूव करने के लिए पहले आपको पार्टीशन लेनी पड़ेगी। सो हमने ये पार्टीशन, हमने x1 x2 x3 क्यों नहीं चूज किए? क्योंकि हमारे पास पहले ही एक्साइज जो ओपन इंटरवल है वो एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी के लिए हम यूज कर चुके हैं। सो हमने क्या किया, ये C0 C1 ये हमने एक पार्टीशन ले ली, ठीक है जी? सो दैट द डिफरेंस बिटवीन Cj minus 1 it is less than delta for all j is equal to 1 2 3 so on up to, मतलब C when you will put j is equal to 1 minus C0, this is less than delta, that is C2 minus C1 is less than delta. लास्ट में Cn minus 1 minus Cn minus Cn minus 1 is less than delta. ये मैंने इसको ओपन करके लिखा है, ठीक है? Now for every finite collection of pairwise disjoint subintervals in Cj minus 1 and Cj. अब देखो जब आप एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हो ना, तो इस इंटरवल के अंदर हमने कलेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स लिया। अब क्या होगा? अब एक इंटरवल आ रहा है, कौन सा? Cj जनरल, Cj minus 1, जनरल एलिमेंट इसमें Cj ले लिया।
ठीक है जी, ये एक इंटरवल है। इस इंटरवल के अंदर अब हमने कलेक्शन लेंगे डिसजॉइंट for every finite collection xi to xi dash of pairwise disjoint subintervals in cj minus 1 cj we have। अब cj minus 1 और cj के अंदर जो भी एक कलेक्शन आ रही है बेटा, एक्चुअली तो वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ही आ रही है ना, और क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर जो एक फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट होल्ड करता है। ये देखिए ये वाला, ये रिजल्ट होल्ड करता है, ठीक है जी। और इसको हम लिखेंगे, अब ये ए टू बी के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर होल्ड हो रहा है, सीजे माइनस 1 टू सीजे के। तो दैट इज द टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन का मतलब होता है सुप्रीमा। हम जब फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 इट इज लेस देन कोई भी नंबर के, ठीक है, तो इट इम्प्लाइज सुप्रीमम। ये एक पार्टीशन के लिए, एक पार्टीशन ली, उस पार्टीशन के लिए सम के से छोटा आ रहा है। तो जब आप सारी पार्टीशंस का के कॉरस्पॉन्डिंग जब ये एक सम लेंगे, तो अगर वो भी अगर लेस देन इन्फिनिटी आएगा तो हम लिखते हैं टोटल वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ द फंक्शन एफ इज लेस देन इन्फिनिटी। अब इंटरवल यहाँ पे चल रहा है सीजे माइनस 1 टू सीजे। So the total variation of the interval of the function f from the interval j minus 1 to cj it is less than or equal to 1। less than or equal to क्यों आया, क्योंकि जब ये t लगा दिया तो t में कौन आता है, सुप्रीमम आ जाता है, ठीक है जी। So then आगे, सो दिस इज, अब हमने जितने भी हमारे पास सब इंटरवल से उनको सम अप कर लिया दोनों साइड्स पे, दोनों को सम अप करके हमारे पास आ गया टोटल वेरिएशन। इसको ओपन करेंगे, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1। अब ये सारी छोटी छोटी टोटल वेरिएशन ऐड हो गई, तो अल्टीमेटली टोटल वेरिएशन बन गई सी नॉट से लेके सी एन तक, वो हो गई टोटल वेरिएशन। सी नॉट की वैल्यू क्या है, ए है, सी एन की वैल्यू क्या है, बी है। So this is the total variation of the function f from the interval a to b. So this is less than or equal to n and this is less than infinity. Therefore, f is a function of bounded variation. So now they are saying that the converse of the theorem is not true. That is, they are the functions of bounded variations which are not absolutely continuous. One such function is a Cantor function. So previous property number 1 में भी Cantor function जो है वो function of bounded variation है, and it is a absolutely continuous, it is a continuous function, uniformly continuous function, but it is not absolutely continuous. So this is all about the first two properties of absolutely continuous function.